Hello everyone. Okay, so let's start with this batch program. So we have a use case that we need to write down a batch class and to update the hiring manager location and the contact number for all of the hiring manager records. And what is location and the contact number? Okay, fine. And then by dividing them into the batch size. The batch size what is given over here is 10. First of all, let's understand what is the use case. Okay. First of all, let's understand what is the use case. See, so we let's go to the hiring manager object, and if I click on this all, I could see that altogether there are 563 different hiring manager records. Some of them is having location as Nagpur, some of them is having Mumbai or probably something else. And then if I even see the contact numbers are also, they are all of them, all 563 records. We let's consider that all of them are having different values of the contact numbers. Okay, now what we wanted to update all 563 hiring manager records. First of all, understand the use case. First of all, understand the use case. What we are doing, guys, we are actually writing a batch program. When this batch program is going to be get executed, it will be updating two fields. First one is the contact number, the second one is the location. These are the two fields that are going to be updated with the same value. That means all 563 records will, after executing the batch program, after executing this batch program, all 563 records will going to have same value of contact number and same value of location also. Okay, so that is what the program is. Now let's start writing the batch program. So yesterday we have seen what is the format of the batch program, what are the different methods are there, and how to execute everything we have seen, and how to give the batch sizes also. So here the batch size mentioned is 10 record, I mean 10 records per batch, that is what the size. Okay, so let me start with like the developer console, and let's write down the batch program. So I'm creating a new class for this. I'm creating a new class for this, and let me give the name as to be hiring manager update operation, and that's why the update and the batch class. Okay, this is what I'm giving the name. You could give any name for this. I'm giving this name hiring manager update batch. Okay, okay. So we created a class, a general class. Now let's make this class as a batch class. See, every batch class must be what? Global. Every batch class must be what? Global. And to make this as to a batch class, implement, it must, it must implements one interface. The interface name is database dot batchable interface, database dot batchable interface. ठीक है, database dot batchable interface along with one parameter. That parameter is s object parameter. Now see, as soon, अभी यहाँ पर error नहीं है ना, अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कोई error नहीं, but as soon as you implement this, see, one error has come. What is this error? Let's see now. What is this error? Hiring manager update batch must implement the method. Which method? It must have a start method. It must have an execute method. It must have a finish method. It must have start, execute, and finish. And not just error. If you look at very closely, even you could see that what is the return type, that is also mentioned over here. What is the parameter, that is also mentioned over here. Yesterday we have discussed the start method, execute, and finish. They used to have a communication between them with a method called as database.batchable context. So this database.batchable context is a common parameter between all three methods: start method, execute method, and finish method. Your execute method have one more thing, list of s object, that is also mentioned over here. So any batch class must have three methods. Any batch class must have three methods. By the way, what are those three methods? Start method, okay, and then execute method, and then finish method. Okay, execute method, 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 exec
finish method. ठीक है, any batch class must have these three methods. Any batch class must have these three methods. Okay. Now we need to formatize every method, है ना, हर बैच को, हर मेथड को सही तरह से फॉर्मेटाइज करते हैं. सो इफ यू गो विद दिस इंटरनल पैरामीटर के एक पैरामीटर जो सब में कॉमन है, दैट इज डेटाबेस डॉट batchable context. Database dot batchable context. This is a common parameter on in all three methods. Now give एक इसका एक variable define करो, तो I usually do this b context. ठीक है, you could give anything, I usually do this database dot batchable context में b context. Now this is one of the common parameter. ये common parameter है आपकी हर method में. Start method में भी यही है, execute method में भी यही है, finish method में भी यही है. ठीक है, एग्जीक्यूट मेथड में एक पैरामीटर और ऐड होता है, एंड दैट इज द लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट. लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट. हियर आल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव वन वेरिएबल नेम. ठीक है, एक वेरिएबल नेम यहाँ पर भी देना पड़ता है आपको. तो यू कुड गिव एनी वेरिएबल नेम फॉर दिस, यू नो, यू कुड गिव एनी वेरिएबल नेम फॉर दिस. फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड्स टू process, process, records to process, है ना. you could give anything over here. तो ये हो गया स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड के पैरामीटर्स. ठीक है, अब हम आते हैं इनके रिटर्न टाइप पे. अच्छा, मोर ओवर एक चीज और है, ऑल दीज थ्री मेथड्स आर आल्सो ग्लोबल. ये जो तीन मेथड है आपकी, दे आर आल्सो ग्लोबल. योर क्लास इज आल्सो ग्लोबल, इवन द मेथड्स आर आल्सो ग्लोबल, है ना. ये भी एक चीज है यहाँ पे. ऑल थ्री मेथड्स जो है, ऑल दीज थ्री मेथड्स आर आल्सो ग्लोबल में. अब हम आते हैं इनके रिटर्न टाइप्स पे. तो फिनिश मेथड और एग्जीक्यूट मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड, बिकॉज दीज आर प्रोसीजर्स. ठीक है, दीज आर प्रोसीजर्स. बट आपकी स्टार्ट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है, आपकी स्टार्ट मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. अच्छा, जब मैं ये रिटर्न टाइप दे दूंगा ना, तो यहाँ पर एक एरर आएगा आपको. हियर यू आर गोइंग टू सी वन एरर. ये एरर तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक नया एरर आएगा. डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर. ठीक है, दिस. तो अब ये फॉर्मेट के हिसाब से ये पूरा सही है. ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से ये पूरा सही है. अब एज सुन एज वी आर गिविंग दिस, देखो यहाँ पर एक एरर आता है. ये एरर है रिटर्न टाइप का. इट मस्ट हैव, ये ना, स्टार्ट मेथड मस्ट हैव अ रिटर्न. यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए. देखो यहाँ पर आप देखो, अगर आप जाते हो मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट. ठीक है, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, तो ये रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे. उसके बारे में चलिए. सो अब सबसे पहली बैच क्लास है, इसलिए ध्यान से सुनो और अच्छे से लिखो. ये था फॉर्मेट, ये एक जनरल फॉर्मेट था अपना. ठीक है, हर बार जब भी आप बैच क्लास लिखोगे तो आपने ऐसे ही लिखनी है. सबसे पहले क्लास नेम लिखो. क्लास नेम must implement one of the interface. The name of interface is database.batchable interface, and it must have a parameter as an s object. S object parameter must be over there. Then you need to define three methods: start method, execute method, finish method. All of these methods are also having the scope as what? Global. The access specifier everyone. Access specifier for everyone is global. ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं इनकी इंटरनल पैरामीटर्स के ऊपर. स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड, सभी में एक चीज कॉमन है, वो है आपका डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट. ठीक है, ये हर जगह कॉमन है, अलॉन्ग विद द वेरिएबल नेम. आप यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम या तीनों अलग अलग वेरिएबल नेम ले सकते हो. एग्जीक्यूट मेथड में एक और पैरामीटर होता है, वो होता है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट. लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं रिटर्न टाइप के ऊपर में. तो फिनिश और एग्जीक्यूट, ये दोनों का रिटर्न टाइप है वॉइड. दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड. लेकिन स्टार्ट मेथड हमेशा बैचेस रिटर्न करती है, और बैचेस के लिए डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्लास यूज होती है. ठीक है, तो मुझे बेसिकली करना क्या है, व्हाट वी नीड टू इम्प्लीमेंट, वी नीड टू क्रिएट अ बैच क्लास ऑफ लाइक दिस. लेट मी कॉपी दिस इनटू व्हाट वी आर मेकिंग. So what we are making, let me just copy over this. What we are writing a batch program. We are writing a batch program for this purpose. We wanted to implement, we wanted to implement by dividing them. So we wanted to implement, we wanted to update all the hiring manager records. सारे hiring manager records को हमें update करना है कि that all of the hiring manager record must have what must have same location and and they all must have same contact number. ठीक है, this is what happened with this.
चलो ठीक है। तो अभी मुझे सारे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड्स को पहले तो पुल करना पड़ेगा। सारे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड्स को सबसे पहले तो मुझे पुल करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेरी लिखूंगा मैं यहाँ पे, और उस क्वेरी की मदद से आई विल बी पुलिंग ऑल हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड्स। पहले तो उसको मैं लेके आता हूँ किसी एक कलेक्शन में। ठीक है, किसी एक कलेक्शन में उसको लेके आता हूँ, या फिर जो है हमारा जो नॉर्मल वे है हम उससे इसको काम करते हैं। और उसके बाद में फिर हम बाद में सभी के लोकेशन और सभी के कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिख रहा हूँ। अच्छा, ये चीज याद रखो, हमेशा बैच प्रोग्राम में आपको डायनामिक क्वेरी लिखनी है, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट क्वेरी से नहीं करते हो, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड से करते हो। ये हमने काफी बार डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं बार बार इसी चीज पे नहीं आ रहा हूँ। सो डायनामिक क्वेरीज आर ऑलवेज रिटन इनसाइड अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे कि एच आर रिकॉर्ड्स या फिर एच आर रिकॉर्ड्स क्वेरी। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखूंगा। तो डायनामिक क्वेरीज आर ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन व्हाट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एंड डायनामिक क्वेरीज आर ऑलवेज रिटन, ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड अ स्ट्रिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस ओनली। सो नाउ let me write down the query. Select id and then name, and then इसके फील्ड्स की वैल्यू देख लेता हूँ एक बार। हायरिंग मैनेजर के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है? कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर and HR email ID. What we want actually, we wanted कॉन्टैक्ट नंबर एंड लोकेशन। तो फिर ईमेल आईडी पुल नहीं करता मैं, जब इसकी जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी पुल मत करो। ठीक है, जिसकी जरूरत है वही फील्ड निकालो। लोकेशन कैसा है देखो, एक चीज समझो भी, हमने एज अ गवर्नर लिमिट पढ़ रखी है, एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ रखी है कि जब भी आप क्वेरी डिजाइन करते हो ना, तो वही फील्ड्स पुल करो जिसकी तुम्हें जरूरत है। सारी की सारी पुल करने की तुमको वैसे जरूरत तो नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है किसको अपडेट करना है? वी नीड टू अपडेट लोकेशन। ठीक है, वी नीड टू अपडेट लोकेशन, और सेकंड वी नीड टू अपडेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं सिर्फ ना ये दो अलोंग विद द आईडी एंड नेम आई एम पुलिंग दीज टू ओनली। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स है, बट मैं इसी को पुल करता हूँ। ठीक है, इसी को पुल करता हूँ। एंड देन, हाँ ना, चलो ये क्वेरी फॉर्म हो गई है। अब ये क्वेरी मुझे एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। तो ये जो क्वेरी है हमने यहाँ पे ये पूरी जो बनाई है, इसको हमने कहाँ स्टोर कर रखा है? वी हैव स्टोर दिस इनसाइड अ स्ट्रिंग वेरिएबल एच आर रिकॉर्ड्स क्वेरी। तो डायनामिक क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है? देयर आर टू डिफरेंट वेज। एक होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, दूसरा होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। यहाँ प्रिसाइसली आपको जो मेथड यूज करनी है, यहाँ प्रिसाइसली आपको जो मेथड यूज करनी है, ठीक है, वो मेथड है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी। डेटाबेस डॉट गेट गेट नहीं आ रहा, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। ठीक है, ये वाली मेथड आपको यूज करनी है। सो इसमें दो फ्लेवर्स हैं, एक है स्ट्रिंग क्वेरी वाला और दूसरा ये। तो मैं दूसरे उसके साथ जा रहा हूँ यहाँ, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, इस मेथड के साथ जा रहा हूँ। तो हियर हियर आई नीड टू गिव वो वेरिएबल का नाम जहां पर हमने क्वेरी स्टोर करके रखी है। ठीक है, तो हमने क्वेरी कहाँ स्टोर कर रखी है बाय द वे? यहाँ पे। तो मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब ये देखो, ये जो मेथड है हमारा डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, दिस मेथड विल गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। क्या मेन डिफरेंस है आपका डेटाबेस डॉट क्वेरी और डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के बीच? क्या डिफरेंस है? कॉमन अगर कुछ है दोनों में तो मैं बताता हूँ कि कॉमन ये है कि डेटाबेस डॉट क्वेरी और डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, दोनों मेथड डायनामिक एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करने में यूज होता है। ये कॉमन है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं ये मेथड एग्जीक्यूट करता हूँ और अगर डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? बताइए। दो पॉइंट के डिफरेंस है यहाँ पे, दो चीजें हैं जो, आई मीन दो पॉइंट्स है जो डिफरेंस में आप बता सकते हो। हम्म क्या डिफरेंस है? आपने क्वेरी बनाया है, डायनामिक क्वेरी। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी इधर विद डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, है ना, डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, डेटाबेस डॉट क्वेरी। देखो ये भी वही चीज है। आई कुड इवन गिव दिस मेथड, आई कुड इवन गिव दिस मेथड ओवर हियर आल्सो। मैं यहाँ भी दे सकता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ भी दे सकता हूँ। आई कुड एग्जीक्यूट दिस क्वेरी इधर बाय गेट क्वेरी लोकेटर या फिर क्वेरी मेथड। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? हम्म
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यस आई नो, बट हाँ ठीक है, चलो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स? यस अक्षय, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स? हम्म, हाँ, सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस हर्ष ने और अक्षय ने बताया है। देखिए, अगर आप ये मेथड के साथ में क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो, दैट मीन्स यू कुड ओनली फेच अप टू 50,000 रिकॉर्ड्स, एंड डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर विल गिव यू अप टू व्हाट, अप टू 50 मिलियंस ऑफ द रिकॉर्ड। दैट इज व्हाट द डिफरेंस, दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज ऑल अबाउट। 50,000 और 50 मिलियंस के बीच एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस है यहाँ पे, दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है? हम्म, दूसरा डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप डेटाबेस डॉट क्वेरी में रखकर स्ट्रिंग क्वेरी देते हो, डायनामिक क्वेरी, इट विल गोइंग टू रिटर्न यू हाउ मच रिकॉर्ड, 50,000 रिकॉर्ड, अप टू 50,000 रिकॉर्ड आपको यहाँ से मिल सकता है। और वही सेम क्वेरी अगर आप डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के अंदर रख के देते हो, नाउ यू कुड फेच अप टू 50 मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा क्या डिफरेंस है बाय द वे? दूसरा क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस ये है, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ क्वेरी। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी, ठीक है, इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, synchronous as well as asynchronous. Database.query method can be used anywhere. Synchronous programming as well as asynchronous programming. ठीक है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, बट दिस मेथड database.getQueryLocator method is only and only used in the bash program. ये कल डिस्कस किया था ना हमने कि whenever you are using database.getQueryLocator method, तो जिस क्लास के अंदर, जिस मेथड के अंदर आप इसको यूज करो, दैट मेथड मस्ट इंप्लीमेंट व्हाट, डेटाबेस डॉट बैचेबल एसओ, डेटाबेस डॉट बैचेबल इंटरफेस, यानी इट मस्ट बी अ बैच क्लास। ये डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस मेथड विल गोइंग टू एग्जीक्यूट this query and it will return all of the records inside hiring manager object, ठीक है, all of the now this query is not completed with me, from the name of the object, query तो complete ही नहीं किया मैंने, from hiring manager, okay, from hiring manager, now the query is complete, select id, name, contact number, location, from where, from the hiring manager। अब ये query complete हुई। हाँ, तो this query is going to return all of the records from the hiring manager। और जब आप database डॉट गेट क्वेरी लोकेटर के साथ यूज कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी 50 मिलियन तक है। हालांकि इतना रिकॉर्ड नहीं है अपने केस में, देखा जाए तो हायरिंग मैनेजर में कितना रिकॉर्ड है, 563 रिकॉर्ड्स ही वैसे, लेकिन बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बैच प्रोग्राम, तो आपको बैच प्रोग्राम में डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, गेट क्वेरी लोकेटर मेथड ही यूज करना है, ठीक है, यही मेथड आपको यूज करना है यहाँ पे। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, I am returning the same thing. return must have a return type, it must have a return type, that's the reason I am returning this। अभी ये एरर चला जाएगा यहाँ से, देखो ये एरर यहाँ से जा चुका है। लेट मी सेव अप टू दिस। अब इतना होने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से समझो इसको, फिर से समझो, स्टार्ट मेथड में हमेशा क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, स्टार्ट मेथड में हमेशा क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। अभी मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप ये तो हमने कल डिस्कशन कर लिया है, और कल का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड था सिर्फ बैच क्लास के फॉर्मेट को समझने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कतें गई हैं, तो आपको फिर से वही लेक्चर को रिवाइज कर लेना चाहिए। और मेरा ये सोचना है कि अभी ये चीजें बार बार रिवाइज करके मतलब नहीं, इस वक्त मैं इसके आगे बढ़ने में ज्यादा फोकस करूंगा। तो स्टार्ट मेथड जो होती है हमारी, स्टार्ट मेथड का जो बेसिक काम है वो है बैचेस फॉर्म करना। बैचेस के लिए डेटा चाहिए, डेटा चाहिए, तो डेटा कहाँ से आएगा, क्वेरी से। जब आप एक क्वेरी बना के जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, तभी उसको डेटा मिलेगा। तो जो स्टार्ट मेथड का जो बेसिक ऑपरेशन होता है ना, वो होता है क्वेरी को फायर करना। तो जो क्वेरी आप डिजाइन करते हो, जो भी क्वेरी आप डिजाइन करते हो, और उसे एग्जीक्यूट करना विद द मेथड डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, ये काम होता है आपका स्टार्ट मेथड। अब ये जो रिजल्ट आया यहाँ पे, ये जो रिजल्ट आया है, इस ये जब ये क्वेरी फायर हुआ, ये वाला जब क्वेरी फायर हुआ, तो रिजल्ट जनरेट हुआ। एक्चुअली कितना रिजल्ट रिटर्न करेगा ये, इट्स गोइंग टू, अगर मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि 563 रिकॉर्ड्स है ना, 563 रिकॉर्ड्स ये रिटर्न करने वाला है।
अब ये जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ये जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, नाउ सी, ये जो रिजल्ट है ना हमारा, यही रिजल्ट यहाँ से जो रिटर्न हुआ यहाँ पर आया, और ये आगे बढ़ा देता है आपको एग्जीक्यूट मेथड को। तो एग्जीक्यूट मेथड में वी हैव कलेक्टेड दिस इनसाइड अ लिस्ट कलेक्शन, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। एस ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है क्वेरी के अंदर, वो कोई भी ऑब्जेक्ट रह सकता है। हायरिंग मैनेजर रह सकता है, कल चल के अकाउंट भी हो सकता है, ये कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड्स आए हैं, वो एक चीज तो कंफर्म है कि सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन नहीं है। इसीलिए ये है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट क्या है? इट्स अ जनरलाइज डेटा टाइप। देखो, लिस्ट ऑफ अकाउंट, अगर मैं कहता हूं कि लिस्ट ऑफ अकाउंट, तो इट विल ओनली स्टोर अकाउंट रिकॉर्ड। अगर मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट विल ओनली गोइंग टू स्टोर द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स। अगर मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ केस या फिर लिस्ट ऑफ सोल्यूशन, इट विल ओनली गोइंग टू स्टोर दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। अगर मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर, तो इट विल ओनली स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द हायरिंग मैनेजर टाइप। अगर मैं कहता हूं लिस्ट ऑफ पोजीशन, तो इट विल ओनली गोइंग टू स्टोर ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द पोजीशन डेटा टाइप। तो कैसे ना, यहाँ पे डिफाइन थोड़ी ना होता है कि आप कौन सी ऑब्जेक्ट पे क्वेरी फायर करोगे, लेकिन एक चीज कंफर्म होती है, आप जो भी क्वेरी बनाओगे, आखिरी में उस जो नाम आएगा वो एक सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर चाहे वो पोजीशन रहे, फिर चाहे वो हायरिंग मैनेजर रहे, वो चाहे अकाउंट रहे ना, इस कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी कस्टम। हमें ये नहीं पता होता कि बैच क्लास एग्जैक्टली किस पे लिखी जाएगी। तो हम जब क्वेरी डिजाइन करते हैं ना, जब हम क्वेरी डिजाइन करते हैं, तो वो ये तो हमें नहीं पता कि कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा या कौन सा ऑब्जेक्ट रह सकता है, लेकिन एक चीज पक्का है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आखिरी में, वो सेल्सफोर्स का ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जो भी डेटा टाइप आएगा वो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप आएगा। और इसीलिए ये जो पैरामीटर है आपका लिस्ट कलेक्शन, जहां पे ये रिकॉर्ड यहाँ पर आके स्टोर होता है, उसका डेटा टाइप होता है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, ना कि लिस्ट ऑफ अकाउंट, ना कि लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर। ऐसा नहीं है, ये एक जनरलाइज डेटा टाइप है। तो यहां से क्वेरी से ऊपर की जो स्टार्ट मेथड में जब क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रिटर्न करे, कोई भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रिटर्न करे, दिस विल गोइंग टू होल्ड इट, दिस विल गोइंग टू होल्ड इट। इसलिए यहां पर एक आगे में एक स्टेप बढ़ने वाली, वो है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब वो क्या है मैं समझाता हूँ, पहले आप ये समझो, यहाँ पे ये कैसा पहला प्रोग्राम है, इसलिए बहुत ध्यान से समझो। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है इसकी, इसलिए आप चिंता मत करो, लेकिन हाँ, पहला प्रोग्राम है इसलिए इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ आपको ये तो लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर क्या मैं इसको लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरी मैंने बनाई है वो हायरिंग मैनेजर पे बनाई है। ठीक है, ठीक है, आप करके देख लो, आपको एरर आता है। ठीक है, अगर क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मेट है, ये इसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स है। अगर आप ऐसा ऑब्जेक्ट को इससे रिप्लेस करते हो, और ये सोच के कि भाई हमने जो क्वेरी ऊपर फायर किया है वो तो हायरिंग मैनेजर की है, तो वो तो हायरिंग मैनेजर की है, तो जो रिकॉर्ड हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वो भी हायरिंग मैनेजर के हैं। ठीक है, अब मैं उसको लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर में ही कलेक्ट कर लूँ, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर में ही कलेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो बेसिकली कैसा है, ये जो फॉर्मेट है इसका, ये फॉर्मेट फिक्स होता है। ये जो फॉर्मेट है आपका, ये फिक्स होता है। अब अगर आप लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर करते हो, तो ये बन जाता है डेडिकेटेड। ये सिर्फ और सिर्फ हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड ही प्रोसेस कर सकता है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकता। ठीक है, तो रन टाइम पे यहाँ पर अभी अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन रन टाइम पे आपको यहाँ पर एरर आएगा, रन टाइम पे यहाँ पर एरर आता है। इसलिए हम इसको कभी भी स्पेशलाइज नहीं रख सकते। ये हर बार हमेशा आपका लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ये हर बार आपका लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है डेटाबेस डॉट बैचेबल ऑफ एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको स्पेशलाइज नहीं बनाते। तो अब क्या होगा, एक चीज छोटी सी, थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। मतलब अ, कैसे बताना चाहिए मुझे, देखिए, एक चीज समझिए, अभी आपने क्वेरी फायर किया किसके ऊपर? हायरिंग मैनेजर पे। जो भी रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं, जितने भी रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं, वो उसका डेटा टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर। उसका डेटा टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर। मतलब यहां से जब मैं कह रहा हूँ रिटर्न करो, तो रिटर्न करो, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है इस मेथड को। ठीक है, किस तरह का रिकॉर्ड? हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड। यहां से ये हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड जाके इस लिस्ट में, यानी ये वाली लिस्ट में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड का टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट।
इसका डेटा टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो अलग अलग डेटा टाइप हो जाते हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड आया है, स्टार्ट मेथड ने जो रिकॉर्ड भेजी है, जितने भी रिकॉर्ड भेजी है, उसका डेटा टाइप कुछ और है। उसका डेटा टाइप है फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर। आपने जो कलेक्शन डिफाइन कर रखा है, आपने जो कलेक्शन डिफाइन कर रखा है, उसका डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ता है पता है क्या? एस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट कर कर उसको हायरिंग मैनेजर पे लेके जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। मतलब आपने यहां से डेटा क्या है? हायरिंग मैनेजर, लेकिन जिस लिस्ट में तुमने लिया उसका डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट। तो एस ऑब्जेक्ट से उसे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड बनाने के लिए, हायरिंग मैनेजर बनाने के लिए हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करना पड़ता है। अब ये कैसे करते हैं आओ देखो। तो ये अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं आता हूँ एग्जीक्यूट मेथड की तरफ। ठीक है, चलिए, तो एग्जीक्यूट मेथड की तरफ में सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि वेदर दिस लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ये एक जनरल है, इसके पहले भी आपने किया हुआ है कि जब भी आप किसी भी कलेक्शन पे काम करते हो, किसी भी कलेक्शन पे काम करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक वेदर द कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, है ना? कलेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो नॉट ऑफ, वन सेकेंड। तो हमने यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया है इस वक्त, वो हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट से किया है। स्टार्ट मेथड ने हालांकि हायरिंग मैनेजर की रिकॉर्ड्स रिटर्न किए, लेकिन जब आपने उसे कलेक्ट किया एग्जीक्यूट मेथड पे, तो एग्जीक्यूट मेथड को ये प्रिसाइसली हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड नहीं मिला है, ये मिला है एस ऑब्जेक्ट बन के। इसीलिए यहाँ पर हमें टाइप कन्वर्शन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो इसके इसके पहले भी हमने कर लिया है, और वही चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी कलेक्शन के रिकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं, जब भी हम कोई कलेक्शन के रिकॉर्ड को प्रोसेस करते हैं, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कलेक्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मतलब ये मान के चलिए कि अगर ये क्वेरी से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है ना? अगर फॉर एग्जांपल हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड ही नहीं है और यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो फिर इसके आगे का जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करके कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लिस्ट कलेक्शन है जिसका ये नाम है रिकॉर्ड टू प्रोसेस, वेदर इट इज नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे नॉट ऑफ डॉट इज एम्प्टी, इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमने इसके पहले भी कर लिया है। तो इससे पहले कि मैं कोई और कोड करूं, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि वेदर दिस लिस्ट कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ दिस कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, नॉट ऑफ दिस कलेक्शन इज एम्प्टी, मतलब ये कलेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो आप इसके आगे आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे बेसिकली एक हायरिंग मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक कलेक्शन डिफाइन करता हूँ, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर। ठीक है, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर, गिव एनी वेरिएबल नेम लाइक एचआर रिकॉर्ड्स, एचआर रिकॉर्ड्स टू अपडेट, ऐसा कुछ लिखा गया मैंने इसके पहले, एचआर रिकॉर्ड्स टू अपडेटेड। ठीक है, इक्वल्स टू देन न्यू, सेम थिंग, ये पूरा कॉपी करो और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दो आप इसको। ये पूरा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ। कौन सी क्लास का? हायरिंग मैनेजर क्लास का। हायरिंग मैनेजर ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस मैंने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर 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 एक एनहांस फॉर लूप, इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स आए, बाय द वे कितने रिकॉर्ड्स आएंगे आप यहाँ चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, आपके पास हैं टोटल 563 रिकॉर्ड्स। ठीक है, हायरिंग मैनेजर, ये जब क्वेरी फायर होगी हायरिंग मैनेजर पे, तो कितने रिकॉर्ड्स देगी? 563 रिकॉर्ड्स। तो ये 563 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, रिटर्न हुआ है ना यहाँ से, ये क्वेरी फायर हुई है, रिटर्न हुआ है। तो ये जो रिकॉर्ड टू प्रोसेस, ये जो कलेक्शन है हमारा, आइडियली इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स होना चाहिए? 563 रिकॉर्ड्स। यहाँ से एक एक रिकॉर्ड में जो उठाना है, एक एक रिकॉर्ड उठाना है, उसका लोकेशन और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है। तो मैं एक एक रिकॉर्ड उठाऊंगा यहाँ, सबसे पहले पहला रिकॉर्ड उठाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पहला रिकॉर्ड उठाऊंगा। सबसे पहला रिकॉर्ड उठाऊंगा यहाँ से रिकॉर्ड उठाना है। और फॉर एडवांस फॉर लूप हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले राइट साइड में उस कलेक्शन का नाम जहां से आप रिकॉर्ड उठा रहे हैं, जैसे यहाँ से उठा रहे हैं, इसके बाद लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसका डेटा टाइप, कि यहाँ से जो एक एक रिकॉर्ड आएगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा। यहाँ कोई हेल्प कर सकता है, कोई बता सकता है कि इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? आप यहाँ से एक एक रिकॉर्ड उठा रहे हैं, मैं दो ऑप्शन देता हूँ आपको।
इसका जो डेटा टाइप है वो हायरिंग मैनेजर रहेगा, इसका डेटा टाइप एस ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए सोच के बताइए जरा सा, इस कलेक्शन के अंदर 563 रिकॉर्ड्स हैं, उसका डेटा टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर है या फिर एस ऑब्जेक्ट है? बताइए। हम्म क्या है? हम्म डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है? रिकॉर्ड टू प्रोसेस, ये जो लिस्ट कलेक्शन है जिसमें 563 रिकॉर्ड स्टोर्ड हैं अभी, है ना? अप्रोक्सीमेटली कितने रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे? 563 रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड जो यहाँ पे स्टोर हुए हैं, मतलब स्टार्ट मेथड ने इसको रिटर्न किया है, स्टार्ट मेथड ने यहाँ से रिटर्न किया है, क्वेरी फायर हुई है, ये वाली क्वेरी फायर हुई है, इसने हायरिंग मैनेजर से 563 रिकॉर्ड्स ढूंढ के निकाली है और उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद में ये पूरा मटेरियल जो है, ये पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आके इस कलेक्शन में स्टोर हुए हैं। इस कलेक्शन का डेटा टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट है या हायरिंग मैनेजर? हम्म इस कलेक्शन का, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस कलेक्शन का डेटा टाइप क्या है? इस कलेक्शन, जिस कलेक्शन का नाम है रिकॉर्ड टू प्रोसेस, उसका डेटा टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर या एस ऑब्जेक्ट? जो उसने, चलो ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। रिकॉर्ड का डेटा टाइप हायरिंग मैनेजर है, कलेक्शन का डेटा टाइप तो एस ऑब्जेक्ट है ना भाई। यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो एक अलग बात है कि रिकॉर्ड्स हायरिंग मैनेजर का है या रिकॉर्ड, जो ये जनरलाइज कलेक्शन है, इट कुड स्टोर एनीथिंग। हायरिंग मैनेजर को बोल दो, अकाउंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। लेकिन कलेक्शन का डेटा टाइप है आपका एस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हर एक रिकॉर्ड का डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट। नाउ गिव एनी वेरिएबल नेम, जैसे कि ऑब्जेक्ट, ऐसा। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये लूप कैसे काम करेगा कि यहाँ पे 563 रिकॉर्ड्स हैं, पहला रिकॉर्ड निकालेगा, उसको यहाँ देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते ये लूप, ये एनहांस फॉर लूप है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड से लेके एंड रिकॉर्ड तक, लास्ट जो भी उसका काउंट होगा 563 रिकॉर्ड्स, वहां तक ये लूप ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। हालांकि ये जो रिकॉर्ड्स, ये इसका डेटा टाइप ऐसा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ से जो आया है आपको स्टार्ट मेथड से जो आया है इसके अंदर, वो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था, वो हायरिंग मैनेजर था। अब मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था ना आपको कि मुझे टाइप कास्ट करना है, टाइप चेंज करना है, ये एक जनरलाइज कलेक्शन है। फिर से सुनो, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सबको, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक जनरलाइज कलेक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक इस तरह का कलेक्शन है, ये एक इस तरह का कलेक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है। आप क्वेरी फायर करिए हायरिंग मैनेजर पे, तो ये हायरिंग मैनेजर का रिकॉर्ड स्टोर करेगा। आप क्वेरी फायर करिए पोजीशन ऑब्जेक्ट पे, ये पोजीशन ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करेगा। आप क्वेरी फायर करिए अकाउंट पे, ये अकाउंट कर सकता है। ये किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये कलेक्शन क्या टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। ये एक जनरलाइज कलेक्शन होता है। आज तक आपने एस ऑब्जेक्ट पे काम नहीं किया, ये पहली बार है, इसलिए मैं भी उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने पे ध्यान दे रहा हूँ। एस ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट मतलब सारी स्टैंडर्ड और सारी कस्टम ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में हम ये इस कलेक्शन को जनरलाइज बना देते हैं। ये कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का, अब आप क्वेरी फायर करिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप उसका रिकॉर्ड लाके यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको ना उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। अभी इसका टाइप है एस ऑब्जेक्ट, अभी इसका जो टाइप है, यहाँ जितने भी रिकॉर्ड है उसका टाइप है एस ऑब्जेक्ट, लेकिन बाद में उसे मुझे एस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट करना है हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड पे, ठीक है, हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड पे। इसलिए यहाँ पर अब मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ एक एक रिकॉर्ड उठा के। ध्यान से समझो, टाइप कास्टिंग एक एक रिकॉर्ड पे होती है। तो पहला रिकॉर्ड, जैसे 563 रिकॉर्ड्स हैं, पहला रिकॉर्ड आया, कहां पर आया? ओबीजे के अंदर, ओबीजे के अंदर। अब उसको आप टाइप कास्ट करो, टाइप को चेंज करो। टाइप को किस में चेंज करना है? एस ऑब्जेक्ट से हायरिंग मैनेजर बनाना है, एस ऑब्जेक्ट से हायरिंग मैनेजर बनाना है, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनो, बहुत बहुत इजी प्रोसेस है। ओबीजे,
ये है वो ऑब्जेक्ट जहां रिकॉर्ड है, ये है वो ऑब्जेक्ट जहां रिकॉर्ड है। इसका डेटा टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे कन्वर्ट किस में करना है? हायरिंग मैनेजर। इसे कन्वर्ट किस में करना है? हायरिंग मैनेजर। तो आपको करना क्या पड़ता है? इसके सामने ब्रैकेट ओपन करो। ठीक है, इसके सामने ब्रैकेट ओपन करो और वहां पे वो डेटा टाइप लिखो जिसमें आपको कन्वर्शन चाहिए। तो मैंने ये किया, मतलब ओबीजे, जहां पे अभी जैसे पहला रिकॉर्ड, भाई यहाँ पे 563 रिकॉर्ड्स है, पहला रिकॉर्ड निकला कहां पर आया? ओबीजे में, फिर अंदर आया। अब ये जो ओबीजे में जो पहला रिकॉर्ड आया है, उसका डेटा टाइप क्या है? एस ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट में काम नहीं है, मुझे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड है, तो मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट करना, टाइप को चेंज करना। ठीक है, तो फिलहाल इसका डेटा टाइप है ओबीजे, मैंने उसे चेंज किया, किस में चेंज किया? हायरिंग मैनेजर में। तो अब ये जो रिकॉर्ड था वो चेंज हो गया किसमें? हायरिंग मैनेजर में। तो अब ये जो रिटर्न करेगा, यहां से जो रिटर्न करेगा, वो रहेगा आपका हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड। उसको उसको कलेक्ट करना है। कितने रिकॉर्ड? एक रिकॉर्ड। भाई यहां भले ही 563 रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड थोड़ी ना आ रहे हैं। पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, ऐसा वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड आ रहा है। ओबीजे अगर मैं पूछूं कि कितने रिकॉर्ड होल्ड करता है एट अ टाइम, तो आंसर है एक ही रिकॉर्ड। एक ही रिकॉर्ड है। यहां पे आपने उसे टाइप कास्ट किया, आपने उसको चेंज किया, एस ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट किया किसमें? हायरिंग मैनेजर में। और ये बहुत आसान स्टेप है। किसको चेंज करना है? इसको। किस में चेंज करना है? इसमें चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करना है, जिस फॉर्म में लाना है, उसको ब्रैकेट के अंदर ला लो, उसको ब्रैकेट के अंदर ला लो। ठीक है, तो ये फिर से डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स है, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, इस तरह से। ये डेस्टिनेशन है, यहां से सोर्स में जा रहा है, ये इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, अब जब ये चेंज हो गया है, तो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा एक हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड। हायरिंग मैनेजर का एक रिकॉर्ड, उसको कलेक्ट करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है। अगर बाय द वे ये इंटीजर रिटर्न कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे इंटीजर का एक वेरिएबल डिफाइन करता, इंटीजर num1। अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल दे रहा होता, अगर स्ट्रिंग रिकॉर्ड दे रहा होता, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लेता, स्ट्रिंग num1। लेकिन ये क्या दे रहा है? ये जब ये ओबीजे कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये क्या दे रहा है? एक रिकॉर्ड दे रहा है, एक रिकॉर्ड दे रहा है। उस रिकॉर्ड का टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर। इसलिए मैं उसे कौन से वेरिएबल में ले रहा हूँ? हायरिंग मैनेजर वेरिएबल में ले रहा हूँ। ठीक है, एचआर रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो एचआर रिकॉर्ड जो ये वेरिएबल डिफाइन किया, इसका डेटा टाइप क्या है? हायरिंग मैनेजर। एचआर रिकॉर्ड का ये डेटा टाइप है। ठीक है, अब इसके आगे का सारा काम जो है वो एचआर रिकॉर्ड से करेंगे। एचआर रिकॉर्ड, एचआर रिकॉर्ड डॉट, एचआर रिकॉर्ड डॉट। ठीक है, कौन से फील्ड मॉडिफाई करनी है हमको? कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू और लोकेशन, दो फील्ड, तो कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन। तो कॉन्टैक्ट नंबर की कोई वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सारे 561 रिकॉर्ड्स की बारी बारी जो है ये वैल्यू अपडेट करनी है आपको। उसके बाद ये हो गया पहला। दूसरा, फिर से एचआर रिकॉर्ड्स डॉट, दूसरी वैल्यू जो हमको मॉडिफाई करनी है वो लोकेशन। लोकेशन पिक लिस्ट है, तो मुझे प्रिसाइसली वही देना पड़ेगा, वही पिक लिस्ट की वैल्यू जो कि यहाँ पे मौजूद हो, तो मैं पुणे देता हूँ। चलो ठीक है, ये दो एक के बाद। अब इसको डीएमएल लगाओ। अब आप यहाँ पे डीएमएल लगाओ, लेकिन उसके पहले हमको बल्किफिकेशन करना है, इसलिए मैंने एक कलेक्शन डिफाइन कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं कलेक्शन डिफाइन कर रखा है, सो मैं बेसिकली एचआर रिकॉर्ड को उसमें ऐड कर देता हूँ। ये हमारा कलेक्शन का नाम है। बल्किफिकेशन के लिए ये स्टेप्स इसके पहले कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, हम फॉर लूप के अंदर कभी भी डीएमएल स्टेटमेंट नहीं देते। मैं इस लूप के अंदर डीएमएल नहीं दूंगा। मैं रादर क्या किया, मैंने बल्किफिकेशन के लिए कलेक्शन डिफाइन कर रखा है। इस कलेक्शन में मैं सारी चीजें ऐड करता हूँ। तो कलेक्शन नेम डॉट व्हाट फंक्शन? ऐड फंक्शन। ऐड ऑफ व्हाट? क्या ऐड करना है आपको? हमें ऐड करना है एचआर रिकॉर्ड। ठीक है, एचआर रिकॉर्ड ये आपने इसमें ऐड कर दिया। चलो एक के बाद एक सारे 200 रिकॉर्ड, नहीं सारे कितने, 563। तो सारे 563 रिकॉर्ड्स एक एक करके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद मतलब यहाँ पे आपको डीएमएल स्टेटमेंट देनी है। तो डीएमएल से पहले भी अपना एक, जैसे कि
कलेक्शन से पहले हम लोग देखते हैं कि कलेक्शन नॉट एम्प्टी होता है। उसी तरह हम डीएमएल यूज करने से पहले भी ये जो हमारा कलेक्शन है, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, है ना, तो मैं चेक करता हूँ कि ये वाला HR records to update whether same thing not of HR record dot is empty, ठीक है, ये empty नहीं होना चाहिए। if it is not empty then उसके बाद फिर मैं DML स्टेटमेंट राइट करता हूँ, ठीक है। तो DML है अपडेट DML स्टेटमेंट, और किसको अपडेट करना है, प्रिसाइसली हमें HR रिकॉर्ड्स, इसको अपडेट करना है। हो गया प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम बन के तैयार है, ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम। नाउ फिनिश स्टेटमेंट जो होती है, फिनिश को हम यूजुअली एम्प्टी रखते हैं, या फिर मैंने कल आपको एक कंसेप्ट बताया था असिंक अपेक्स जॉब का। फिनिश में असिंक अपेक्स जॉब का एक कंसेप्ट है। तो असिंक अपेक्स जॉब क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। असिंक अपेक्स जॉब क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो भी कभी बैच प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कभी भी अगर एक बैच प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो वो बैच प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो सारा कहाँ जाके स्टोर होता है, आपका असिंक अपेक्स जॉब नाम की इसमें, ठीक है। तो हम अभी अभी फिलहाल इस क्वेरी का आपको कोई काम नहीं है, लेकिन आगे चल के विजुअल फोर्स पेज पे इसका काम पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं बेसिकली ये जो क्वेरी मैंने लिख रखी है कि जहाँ पे सिलेक्ट आईडी स्टेटस और सब कुछ, ये सारी फील्ड्स दो, कहाँ से दो, फ्रॉम असिंक अपेक्स जॉब। तो वो बेसिकली मैं क्वेरी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। एल्स व्हाट आई कुड डू, मैं इसको ब्लैंक भी रखूंगा तो आपको एरर नहीं मिलता है, एटलीस्ट वी डोंट गेट द एरर, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ब्लैंक रख सकते हैं, चाहें तो इसमें जो है वो क्वेरी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले प्रोग्राम में सिंपल रखते हैं इसको, पहले प्रोग्राम में हम इसको ब्लैंक रखते हैं, और दूसरे प्रोग्राम में फिर मैं यहाँ पे एक क्वेरी फायर करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको सिंपल रखो। चलो लेट मी सेव अप टू दिस, यहाँ तक सेव कर लेता हूँ, फिर से एक बार देख लो सारी चीजें, लास्ट टाइम फिर से देख लो, फिर मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने एक क्लास डिफाइन करी हायरिंग मैनेजर अपडेट बैच नाम से। इस क्लास को मुझे बैच क्लास बनाना था, ठीक है। इसके लिए मैंने दो चीजें करी। सबसे पहले क्लास का जो स्कोप था उसे ग्लोबल किया, और बैच क्लास बनाने के लिए एक इंटरफेस है जो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इसलिए हमने कीवर्ड यूज किया इंप्लीमेंट्स। व्हाट, डेटाबेस डॉट बैचेबल अलोंग विद द एस ऑब्जेक्ट। जब आप ये पर्टिकुलर इंटरफेस को आप अपनी क्लास के साथ इंप्लीमेंट करते हो, जैसे ही आप इंप्लीमेंट करते हो आपको एक तुरंत एक एरर आता है, और वो एरर बोलता है कि आप ऐसा कोई भी इंटरफेस जिसको डेटाबेस डॉट बैचेबल है, यानी ऐसी कोई भी क्लास जो बैच क्लास है, उसमें तीन मेथड्स होनी चाहिए, स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड और फिनिश मेथड। ये तुरंत एक एरर आता है। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने तीन मेथड्स बनाई। सबसे पहले मैंने स्टार्ट मेथड बनाई, फिर मैंने उसके बाद एग्जीक्यूट मेथड बनाई, और उसके बाद मैंने फिनिश मेथड बनाई, ठीक है। स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड, फिनिश मेथड, इनका जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया था वो हमने कवर किया। कि सबसे पहली बात कि सब में एक इंटरफेस है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट, ये वो मेथड है जिसके थ्रू ये तीनों मेथड्स आपस में कम्युनिकेशन करती है। तो डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट अलोंग विथ एनी वेरिएबल नेम आप एक जगह लिखो, और तीनों जगह उसको कॉपी कर दो, स्टार्ट में भी और एग्जीक्यूट में भी और आपके फिनिश में भी। इसके बाद एग्जीक्यूट मेथड में एक और वेरिएबल होता है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, कोई वेरिएबल नेम के साथ। तो इस तरह से फॉर्मेट पूरा करो उसका, फिर ग्लोबल रखो। इनका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, एग्जीक्यूट और फिनिश का। हाँ, लेकिन स्टार्ट मेथड का डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर मेथड होता है इसका, ठीक है। तो इसके बाद में ये फॉर्मेट आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं, अब आप ये देखो कि स्टार्ट मेथड और मेन चीज जो है ना, स्टार्ट और फिनिश, स्टार्ट और एग्जीक्यूट मेथड है। फिनिश मेथड में असिंक अपनी जॉब है बस, और कुछ नहीं। इसको अभी ब्लैंक रखता हूं मैं, कुछ नहीं करता इसको, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट प्रोग्राम से लूंगा। तो अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट मेथड का जो काम होता है वो होता है सिर्फ क्वेरी फायर करना और रिजल्ट को रिटर्न करना, सिर्फ इतना। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करो कोई भी नाम से, और क्वेरी बनाओ। क्वेरी में उतने ही कॉलम्स रखो जितने की आपको जरूरत है, आईडी नेम तो कॉमन ही रहते हैं इसमें। उसके बाद में जैसे इस प्रोग्राम में मुझे जरूरत थी लोकेशंस की और कॉन्टैक्ट की, तो मैं फिर ऑब्जेक्ट में गया हायरिंग मैनेजर में, और वहां जाके मैंने देखा कि कॉन्टैक्ट के लिए जो फील्ड है उसका नाम क्या है, और लोकेशन की जो फील्ड है उसका नाम क्या है, वो मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी क्वेरी बन के तैयार हो गई। अब ये क्वेरी कहाँ स्टोर्ड है, ये क्वेरी आपके HR रिकॉर्ड क्वेरी नाम के वेरिएबल में है। इसे आपको एग्जीक्यूट करना है। तो कोई भी डायनामिक क्वेरी एग्जीक्यूट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड, और दूसरा होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड, ठीक है। तो डेटाबेस डॉट क्वेरी मेथड जो होती है वो नॉर्मल प्रोग्राम्स के लिए होती है, लेकिन आपके बैच प्रोग्राम के लिए प्रिसाइसली इसका नाम है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड। तो डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर मेथड के अंदर आपने क्वेरी रखनी है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा
और यही सेम चीज आपने रिटर्न भी कर देना है, यही सेम चीज आपने रिटर्न भी कर देना है, वरना आपको अलग से इसका लिस्ट कलेक्शन डिफाइन करना पड़ता है और वो लिस्ट कलेक्शन को रिटर्न करना पड़ता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करते, हम डायरेक्टली इसी को रिटर्न कर देते हैं। तो ये अब ये जिसने इसने क्वेरी एग्जीक्यूट किया, जितने भी रिकॉर्ड्स इसको मिले, वो सारे रिकॉर्ड इसने रिटर्न कर दिया। तो जब ये रिकॉर्ड रिटर्न हुए, तो रिटर्न आए तो इस मेथड को मिले, इस क्लास को मिले। ये क्लास ने उठा के उसको सीधा कहाँ फेंक दिया, ये एग्जीक्यूट मेथड को। एग्जीक्यूट मेथड में एक सेकंड पैरामीटर है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, वहां पर उसको कलेक्ट कर लिया। यहाँ बस एक ही चक्कर है, ये होता है आपका जनरलाइज कलेक्शन। लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट एक ऐसा जनरलाइज कलेक्शन है जो किसी भी तरह के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिकॉर्ड हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड है, या फिर वो रिकॉर्ड पोजीशन रिकॉर्ड है, या फिर वो रिकॉर्ड अकाउंट्स के हैं, या फिर वो कॉन्टैक्ट के, वो आराम से कलेक्ट कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को। ये एक जनरलाइज बकेट है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। तो अब इसने कलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि भाई ये जो रिकॉर्ड्स है, वेदर द रिकॉर्ड इज नॉट एम्प्टी। ये हमारा, ये कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है कि जब भी आप कलेक्शन पे काम करते हो, तो पहले, इससे पहले कि आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करो, पहले चेक करो कि कलेक्शन में रिकॉर्ड है भी या नहीं है। तो हमने वही चेक किया कि द कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्यों डिफाइन किया, बल्किफिकेशन, इस पे बाद में आते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक एक रिकॉर्ड उठाए यहाँ से, रिकॉर्ड टू प्रोसेस में जितने भी रिकॉर्ड्स आए, 500, 600, 1000, 15,000, इसकी कैपेसिटी 50 मिलियंस तक है, इसकी कैपेसिटी 50 मिलियंस तक है। एक एक रिकॉर्ड उठाया, एक एक रिकॉर्ड उठाया जिसका डेटा टाइप है एस ऑब्जेक्ट, यहां तक इसका डेटा टाइप क्या है, एस ऑब्जेक्ट। यहां से उठाया उसको और पहला रिकॉर्ड यहां पे लाया। अब मुझे एक एक रिकॉर्ड को टाइप कास्ट करना है, तो ओबीजे में है मेरा वो रिकॉर्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड का भले यहाँ पे आप ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, लेकिन इसका एक्चुअल डेटा टाइप हायरिंग मैनेजर है। तो मैंने ओबीजे से इसको कन्वर्ट किया किसमें, हायरिंग मैनेजर में। कैसे करते हैं, ये है वो जिसको कन्वर्ट करना है, और ये वो है जिसमें कन्वर्ट करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसको आप आप ब्रैकेट्स के अंदर ले लो। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी आपको, इस इट विल रिटर्न वन रिकॉर्ड ऑफ द टाइप हायरिंग मैनेजर। तो जो भी उसका टाइप है उसमें एक वेरिएबल डिफाइन करो और उसके अंदर उसको स्टोर करो। तो आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया एचआर रिकॉर्ड्स नाम का, और उसके अंदर आपने इसको स्टोर कर लिया। अब आपको जो काम करना है वो करो। क्या करते हैं हम, हमें लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करना था। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एचआर रिकॉर्ड्स, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन को जो भी मुझे अपडेशन करना था वो मैंने अपडेट कर दिया। और ये एक एक रिकॉर्ड नहीं दूंगा, कभी भी हम लूप के अंदर डीएमएल स्टेटमेंट, अपडेट डीएमएल जो है यहाँ पे नहीं देते। तो इसका तरीका हमने पहले सीखा था, बल्किफिकेशन। बल्किफिकेशन, तो बल्किफिकेशन में क्या होता है, आप पहले कलेक्शन डिफाइन करो। जैसे हायरिंग मैनेजर के रिकॉर्ड स्टोर करने थे, तो मैंने हायरिंग मैनेजर का एक कलेक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है एचआर रिकॉर्ड्स टू अपडेट। और एचआर रिकॉर्ड्स टू अपडेट में एक एक रिकॉर्ड ऐड करता चला गया। ये पहला रिकॉर्ड हुआ, फिर ये लूप, दूसरा रिकॉर्ड आया, टाइप कास्टिंग की, टाइप कास्टिंग करके यहाँ स्टोर किया, फिर वो दूसरे रिकॉर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन ऐसे अपडेट किया। ऐसे करते करते एक एक करते करते सारे 500 600 जो भी रिकॉर्ड थे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके ये कलेक्शन में ऐड हो गए हैं। अब ये कलेक्शन पूरा का पूरा अपडेट करूंगा। तो उसके पहले वही फिर से बेस्ट प्रैक्टिस जो यहाँ पे की थी आपने, कि जब भी आप कोई कलेक्शन पे काम करते हो, है ना, जब भी आप कोई कलेक्शन पे काम करते हो, तो आप ये चेक करते हो कि वो कलेक्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर भी वही चीज है। तो आपने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स इस कलेक्शन में डाल रखे हैं, तो इसके पहले कि मैं अपडेट करूं, मैं चेक करूंगा कि वेदर दिस कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी, और नॉट एम्प्टी है तो मैं अपडेट कर दूंगा। फिनिश मेथड फिलहाल डिजाइन नहीं करता। ठीक है, तो ये पूरी मेरी बैच क्लास बन के तैयार है। बस आखिरी चीज है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है, इन्वोक करना है और बैचेस का साइज देना है। तो कल हमने इसका कोड पढ़ा है कि जब भी हमें बैच क्लास को इन्वोक करना है, बैच क्लास को कॉल करना है, तो उसके लिए पहले हमें बैच क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच मेथड है, जिसमें दो फ्लेवर है। अगर आप ये दोगे, सिर्फ ये वाला डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच मेथड, तो आपको डिफॉल्ट बैच साइज लगेगा। लेकिन आपको यहाँ बैच साइज अपने से देना है, तो आप इसका सेकंड फ्लेवर यूज करते हो, जिसमें पहला पैरामीटर आपका ऑब्जेक्ट नेम, दूसरा पैरामीटर इंटीजर बैच साइज। तो मैं यही वाली मेथड फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और इसका रिटर्न ये हमेशा एक आईडी रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रिटर्न करता है हमको, इट ऑलवेज रिटर्न एन आईडी, इट ऑलवेज रिटर्न एन आईडी। चलो, तो इसको फिर मैं, अब ये जो मेथड है इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो की तरफ चलता हूँ, और एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में फिर ये सारी कोड करता हूँ। तो हमारी बैच क्लास का नाम जो है वो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। बैच क्लास का नाम मतलब एज एन स्टेप नंबर वन what we should do, we should rather create the instance
ऑब्लिक ऑब्जेक्ट ऑफ बैच क्लास, जो आपने बैच क्लास बनाई है उसका एक इंस्टेंस, उसका उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ठीक है, तो ये हमारी बैच क्लास का नाम है और मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ किसी भी एक नाम से, जैसे कि एच आर बैच, एच आर BATCH HR batch equals to, for example, new. So again this, तो ये मैंने क्या किया, दिस आई क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने एचआर बैच नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया है। किसका किसका ऑब्जेक्ट बनाया, हमारी बैच क्लास का। ये हो गया स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर टू इज द इन्वोक द बैच क्लास बाय यूजिंग नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग नेम ऑफ जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसके रेफरेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए इन्वोक करने के लिए जो मेथड है उस मेथड का नाम है डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट बैच, इसके दो फ्लेवर्स हैं, दो फ्लेवर। पहला फ्लेवर अगर आप ये वाला लेते हो तो उसमें डायरेक्ट जो उसका डिफॉल्ट साइज है वो लगेगा, जो कि 200 है। लेकिन हमें ये वाला लेना है जिसमें हम इंटीजर बैच साइज अपने से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देना है आपको ऑब्जेक्ट का नाम, ये है ऑब्जेक्ट का नाम, ये मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। और दूसरा बैच साइज, तो बैच साइज मुझे क्या है मेंशन 10, बैच साइज मेंशन है 10। ठीक है, तो ये चीजें, ये दोनों चीजें हो गई। चलिए, तो अब दोनों चीजें रेडी है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और इसके बाद के जो भी चेंजेस है वो हम ये चेंजेस हमको यहाँ नजर आएंगे कि सारे 563 रिकॉर्ड्स का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन जो हमने दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट, तो आपकी बैच क्लास एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप डीबग में जाके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सिस्टम डॉट डीबग मैंने लगाया ही नहीं है। आप चाहो तो नीचे जाके देख सकते हो कि बेसिकली क्या ऑपरेशन हुआ है, तो वो सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हुआ है वो सारे देखो, सभी सभी के एग्जैक्टली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इसका आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड सी व्हाट हैपेंस। सबके कॉन्टैक्ट नंबर जो है, ये एक रिकॉर्ड फेल हुआ है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट नहीं हुआ है। ये क्यों फेल हुआ है, ये इसका रीजन आपको असिंक अपेक्स जॉब में पता चलेगा, इसको छोड़ के। और बाकी जितने भी हैं वो दिख रहे हैं आपको कि सबके आपके कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन जो है वो अपडेट हो चुके हैं, सिर्फ वो रिकॉर्ड छोड़ के जो कि फेल हुआ है, जैसे कि एक रिकॉर्ड। अब इसका आउटपुट देखना है, ये तो आउटपुट हो गया। अब इसके बारे में और देखना है, तो कल मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, वो है बेसिकली लॉग्स, लॉग्स या जॉब, अपेक्स जॉब। अपेक्स जॉब में चलो, ये टेबल में आपको सब नजर आएगा। ठीक है, सबमिटेड डेट, जॉब टाइप क्या था, बैच प्रोग्राम, क्या हुआ, कंप्लीटेड। कोई एरर आया, यस एरर आया है। फर्स्ट एरर, फील्ड कस्टम वैलिडेशन। ठीक है, कोई वैलिडेशन रूल हिट हुआ है, एक वैलिडेशन रूल हिट हुआ है जिसकी वजह से ये जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है ना, ये अपडेट नहीं हुआ है। तो वो वैलिडेशन रूल क्या है, उस पर स्टडी करेंगे अपन। यहाँ उसका एरर आया। टोटल नंबर ऑफ बैचेस है 57। क्यों 57 है बाय द वे, अरे टोटल है 563 रिकॉर्ड, 560 डिवाइडेड बाय 10, 56.3। तो उसको टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनी यहाँ पे, 57। मतलब 57 मल्टीप्लाइड बाय 10 करो ना, 570 रिकॉर्ड होते हैं। तो आपने बैच साइज 10 दिया था, बैचेस प्रोसेस कितनी हुई, 57। एक फेल हुई है उसमें, और वो जो एक फेल हुई ना वो ये है, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड फेल हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ सब कुछ नजर आ जाता है, कब स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था, और जॉब आईडी क्या थी, ये जॉब आईडी। इसको ट्रैक करते हैं बेसिकली अपन, आगे चल के जब अपन प्रोग्रामिंग करेंगे ना इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली बैच का एग्जीक्यूशन। इस पे एक दो प्रोग्राम और ले सकता हूँ मैं, फिलहाल यही प्रोग्राम की प्रैक्टिस करो, तो कल देखता हूँ मैं इसके आगे और क्या होता है।